Now we can take the fourth one, the moral argument. इस पर तीन ऑब्जेक्शन है. नंबर वन इज मोरालिटी इज सब्जेक्टिव. एथिस्ट्स के यहाँ मोरालिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, वो इजाफी है. They say that morals are social constructs. They are actually the outcome of the morals are actually the outcome of the different cultures, different societies. Societies make or construct these moral rules, moral duties, and obligations and rights. We can rebut it like this. Premise number one: if morality is subjective, then genocide and justice are mere opinions. अगर हम morality को इजाफी मानेंगे, morality को objective नहीं मानेंगे, morality को हम किसी कल्चर यानी कल्चर पर डिपेंडेंट रखेंगे, यानी ये कल्चरल है, ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, देन जेनोसाइड, टेररिज्म, जस्टिस, इनजस्टिस, ट्रूथ, these things become opinions. They get restricted with the space and time. Then अगर कोई बंदा जेनोसाइड करता है, उसके यहां करना सही है, तो दूसरे बंदे को कोई इख्तियार नहीं है कि वो उसको कहे आप गलत कर रहा है, बिकॉज वो आदमी जो है वो इसको सही मान रहा है, तो इसलिए वो सही काम कर रहा है. आप इसको गलत कैसे कह सकते हैं? सो वी कैन नॉट हैव ए यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ. वी कैन नॉट say that this is justice and this is injustice. There may be no measuring rod for it. We do not reject, we as Muslims do not reject the subjective morality. Some things, some moralities are of course subjective in nature, but they are secondary or tertiary, they fall at the secondary and tertiary level. Some morality is of course subjective, but the primary morality is objective. The primary morality is objective. The basic morality is objective. तो अगर हम ऐसा मानेंगे कि मोरालिटी सब्जेक्टिव है, तो फिर जस्टिस जो प्राइमरी और बेसिक मोरालिटी में शामिल है, इनजस्टिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, और किसी को हक नहीं है किसी दूसरे बंदे को यह कहना कि आपने गलत किया और आपने सही किया. प्रेमिस नंबर टू, ह्यूमन यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज सर्टेन मॉरल ट्रूथ्स. ये इसकी बात तो मैंने की है ऑलरेडी कि ट्रांसेंडिंग द टाइम एंड स्पेस. Therefore, moral realism is better explained by God. Moral realism is actually philosophy which tells us about that, or which advocates that morality is objective. Morality transcends the cultural restrictions, spatial restrictions. It transcends the time and space. It is independent of human opinion. Objective morality or morality is independent of human mind. It is independent of that. It exists outside the domain of human mind. It is not something that is constructed by the human mind. It exists outside that. It is independent of human mind. It is a reality that is independent of human mind. This moral realism. So moral realism is better explained by God, and this moral realism is better explained by God because how? उसके बारे में मैंने अर्ज किया कि if there is no ultimate accountability, then it has no meaning. The objective morality has no meaning if justice is not delivered, and justice is delivered only when there is some ultimate power who cannot be subdued or swayed by anyone, who cannot be subdued by anyone, who cannot be corrupted, who cannot be bought by using the bribe, by using, or who cannot be subdued by using the power. So he must be possessing the ultimate power. He must be all powerful, all knowledgeable, all wise. So moral realism is better explained by God. Allah commands justice. Then objection number two regarding the moral argument, it is called Euthyphro dilemma. Euthyphro dilemma. बहुत ही एक tricky question है. This tricky question, historical tricky question raised by the atheists. The historical tricky question raised by the atheists. Euthyphro dilemma. Atheist claim, is something good because God commands it, or does God command it, or does God command something because that is good? क्या कोई चीज अच्छी इसलिए है, किसी चीज का करना अच्छा इसलिए है क्योंकि खुदा ने उसके करने का हुक्म दिया है? इट मीन्स किसी चीज में हुस्न और कुबूह इसको कहते हैं, गुडनेस एंड बैडनेस. किसी चीज में अच्छाई क्या इसलिए है कि खुदा के आर्बिट्रेशन पर ये डिपेंडेंट है. जस्ट अल्लाह आर्बिटर्स दैट यू हैव टू डू इट, एंड अल्लाह ने जो ये कहा कि आपको ये करना है, ये कमांड की वजह से ये करना अच्छा हो गया. एक बात ये. दूसरी बात कि कोई चीज इंट्रिंसिकली अच्छी है और खुदा उसको करने के लिए कह रही है. ठीक है, पहली चीज में असल में एतराज ये है कि ओ खुदा की आर्बिट्रेशन से कोई चीज अच्छी कैसी हो जाएगी. यानी इनका एतराज असल में यह है कि खुदा जस्ट किसी चीज को, जैसे आप किसी काम के करने को कहेंगे तो वो कैसे अच्छी हो जाएगी.
या असल में खुदा को ना हम जैसा ही कंसिडर करते हैं। खैर, ये एक क्वेश्चन ये है असल में, इसके जो हिडन इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर खुदा किसी काम के करने को कहता है, मेयरली उस कहने से वो काम अच्छा कैसे हो गया? दूसरी चीज कि अगर कोई काम अच्छा है हकीकत में, तो खुदा इसको कमांड कर रहा है, तो उसका क्या रोल है फिर इसमें? यानी दोनों तरह से ये खुदा पर जर्ब लगाना चाहते हैं, खुदा को डिमीन करना चाहते हैं। सीन हाउ वी कैन रिपोर्ट इट। हम जानते हैं कि अल्लाह जो है, अल्लाह के नेचर में अल्लाह की हकीकत ही अच्छाई है। गुडनेस इज ग्राउंडेड इन गॉड्स नेचर, नॉट क्रेडिटी। रिमेंबर, इट इज गॉड्स नेचर। अल्लाह की जो हकीकत है, रियलिटी जो है, गुडनेस इज ग्राउंडेड इन गॉड्स नेचर, इट इज नॉट आर्बिट्ररी कमांड, नॉट आर्बिट्ररी कमांड्स। आर्बिट्रेशन जैसे इंसान की होती है ना, कि इंसान किसी रैंडमली किसी चीज को अपनी आर्बिट्रेशन से, सब्जेक्टिव जजमेंट से किसी चीज को करने को कहता है, अरे ये कर लो, ये आपके लिए अच्छा चीज है, ये आपके लिए अच्छी चीज है। मुमकिन है वो उसके लिए बुरी भी साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई कहता है किसी को, आप देखो, आप इस सब्जेक्ट में मेहनत कर लो, आपको अच्छी जॉब लग जाएगी इंशाल्लाह आगे। मगर 5 साल 6 साल जब वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ये देखा जाता है उस सब्जेक्ट में इतनी सैचुरेशन है, वो तो उसको कहीं जॉब ही नहीं मिल गया। अब इसकी आर्बिट्रेशन में इसमें अच्छाई तो नहीं आ गई। या किसी ने किसी को कहा कि आप ये सब्जेक्ट ले लो, आपको जॉब मिल जाएगा, और उसको मिल गई। क्या ये इसकी जस्टिस की सब्जेक्ट जो आर्बिट्रेशन है इसकी वजह से है? असल में ये इस तरह इसको रिफ्रेम यानी फ्रेम करते हैं। मगर खुदा की हकीकत कुछ और है और इंसान की हकीकत कुछ और है। इंसान के पास इल्म तो बहुत कम है, अल्लाह के पास तो इल्म कुल है। अल्लाह तो अलीम है और अल्लाह के नेचर में ही अच्छाई है। अल्लाह हसीन है, अल्लाह के नेचर में ही हुस्न है, और अल्लाह पाक अलीम भी है और कदीर भी है, बहुत ज्यादा कुदरत भी रखते हैं, बहुत ज्यादा इल्म भी रखते हैं। तो इसलिए, और वो खालिक भी हैं, जब वो चीजों को पैदा फरमाते हैं, वो अपने इल्म से, अपनी कुदरत और इरादे से चीजों को पैदा फरमाते हैं। कुछ चीजों को हसीन बनाते हैं, कुछ चीजों को कबीह बनाते हैं, कुछ चीजों में इंट्रिंसिकली हुस्न होता है, कुछ चीजों में इंट्रिंसिकली क़ुबूह होता है। दिस द मातरूदी थॉट, दिस द मातरूदी थॉट। रिमेंबर, दिस नॉट अशरी थॉट। यहां पर जो मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया, ये मातरूदाइट थॉट में है, ये अशरी थॉट में नहीं है ये बात। तो अशरी थॉट, अशरी वहां की है डिवाइन कमांड थ्योरी, कि अल्लाह जिस चीज को करने को कहते हैं वो अच्छा होता है। ठीक है, मैं यहां मातरूदियों के यहां एक बैलेंस्ड ओपिनियन है। दे यूज both the divine command theory and they blend it with the rationality. They blend the divine command theory with the rationality. They blend the revelation and rationality. They blend it. That is more balanced. That is more balanced. We cannot say that divine. अब ये morality में इंशाल्लाह मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक बिल्कुल अलग से आएगा, वहां इथाइप्रो डिलेमा भी आएगा। खैर, इसको हम यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इट इज नॉट जस्ट mere arbitration of God, and God is not like us. He is not like us. He is all knowledgeable. He is the creator of everything. वो चीजों को अपनी अपनी कुदरत से, अपनी इरादे से, अपनी चाहत से जैसे चाहता है बनाता है। अब वो अगर किसी चीज के करने को कहता है, मुमकिन है उस चीज में पहले से अल्लाह पाक ने हुस्न रखा हो, उस करने में अल्लाह ने इंट्रिंसिकली हुस्न रखा हो। जैसे कुफर इंट्रिंसिकली इविल है और तौहीद इंट्रिंसिकली अच्छी चीज है, और इसी तरह से कुछ गजाएं इंट्रिंसिकली अच्छी हैं और कुछ गजाएं जैसे सूअर का खाना इंट्रिंसिकली बुरा है, इंट्रिंसिकली। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। देन कमांड्स रिफ्लेक्ट दैट नेचर, द गॉड्स कमांड्स रिफ्लेक्ट दैट नेचर बिकॉज द कमांड्स ऑफ गॉड आर बेस्ड ऑन हिज विल, ऑन हिज नॉलेज। दे कम फ्रॉम द नेचर ऑफ गॉड। So therefore the dilemma is a false dichotomy. It is actually a devil's trap. Then the objection number 3 is religion causes immoral behavior. Religion की वजह से दुनिया में जो है गैर अखलाकी बिहेवियर, गैर अखलाकी लोगों का जो बिहेवियर है वो वजूद में आता है। एथिस्टिकली में हिस्ट्री शोज रिलीजियस वायलेंस, मजहबी लोगों की तरफ से जो जुल्म होता है दुनिया में, जैसे क्रिश्चियंस ने किया और कुछ नाम नेहाद मुसलमानों ने किया टेररिज्म की सूरत में, हिटलर ने किया, बाकी लोगों ने किया, खैर मुसोलिनी ने किया। इसकी रिबटल क्या है, इसको समझना है। abuse of morality, if someone abuses morality, makes a bad use of morality or belongs to some moral ideology but still is doing evil actions, it does not negate the moral truth, because morality is independent of the human beings. Objective morality is independent of human mind and human existence. Number 2, atheistic regimes also committed mass atrocities. और दुनिया में सिर्फ मजहबी लोगों की तरफ से जुल्म नहीं हुआ है,
बल्कि एथिस्ट्स की तरफ से बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है। और ज्यादा दुनिया में जो वायलेंस हुई है वो एथिस्ट्स की तरफ से हुई है, लिबरल्स की तरफ से हुई है। दुनिया में जो ज्यादा कत्ल गारत हुए हैं वो एथिस्ट्स की तरफ से हुई है। अगर हम नबी अलैहिस्सलाम की तमाम जंगों को लेंगे, नॉट मोर देन 1500 पीपल वर किल्ड, not more than 1500 people were killed from both the sides, from the side of the non-Muslims and from the side of the Muslims, not more than 1500, और there were more than 60 battles, और उन सारे battles में not more than 1500 people died, including the Muslims as well as non-Muslims. So therefore we can conclude safely that moral failure does not refute moral grounding. Moral failure does not refute moral grounding.